आवाज आ रही है मेरी आप सबको? ज्वाइन विद जय श्री कृष्ण मैम। जय जय कृष्ण श्री मैम। कृष्ण। आ रही है आवाज। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई होप आपकी पूजा एंड ऑल एवरीथिंग अच्छे से गया होगा। एंड इस बीच में आपने कुछ बाहर के फूड आइटम्स शायद एक्सप्लोर किए होंगे। तो आई होप आपने बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाया होगा, एंड बाहर का खाना भी पड़ा तो उसमें चूज़ किया होगा कौन ज़्यादा न्यूट्रिशियस है एंड कम खराब है हमारी बॉडी के लिए। तो उस तरह से आप थोड़ा सा जजमेंटल रहिए अपने डाइट को लेकर एंड अपने फूड को लेकर। हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। ये आज मैं लास्ट टॉपिक कर रही हूँ, उसके बाद हम थोड़ा सा आउट ऑफ दिस कुछ डाइट्स हैं, स्पेशल डाइट्स विच आई गिव टू माय पेशेंट्स, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। So, next topic is HACCP, that is Hazard Analysis Critical Control Points. So these are organization जो कंट्रोल करती है आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सारी क्राइटेरिया क्लीनलीनेस के लिए को आप मैनेज करते हैं कि नहीं, वो सब चीज़ें देखती हैं। तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट डिफाइंड एज अ सिस्टम दैट आइडेंटिफाइज, evaluates and controls the hazards that are important for food safety. The main work of HACCP is issued started with applications in 1959. NASA space program. NASA intended to provide 100% safety of the food. It sent with astronaut with this work, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम तक उनको फूड अपने साथ रखना पड़ता है, तो अगर उनकी सेहत खराब हो गई तो दे विल नॉट वर्क efficiently and mission will not complete. HACCP implementations have been enacted in 1993 and entered into force in the EU countries. GMP, that is good manufacturing practices. Good manufacturing practices, these are application standards that ensure the safety of food. The experience gained in food operation, including design and construction possibilities, as well as processing, storage, sanitization, control, produces and records, and thus the product is handled in all aspects. The application of the ISO 22000 Food Safety Management Systems standard is an improved version of the HACCP standard, which was published as an international standard and started to be implemented as a mandatory standard in the EU. Product and equipment control, that means equipment hygienically use हो रही कि नहीं, maintenance and general hygiene practices, staff and visitor hygiene, transport, storage, production information, and ये जो इनके जो क्राइटेरिया होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उनको बने बनाए प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं, उनको बने बनाए स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जिनको वो मेंटेन करके अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं। Staff and visitor hygiene, transportation, storage, product information, supplier selection and evaluation, education, communication, etc. The basic aim of ISO 22000 Food Safety Management System is determining the source of risk that cannot be removed from the production process, errors for ensure product quality and consumer health. Basically, ISO 22000 not only provides food safety but also sensory and nutritious quality enhancement and production. So if company is claiming that they are providing health product, so is
company is providing actually health product or just they are providing lots of sugars. So ये सब maintain करते हैं ISO certifications. बिकॉज सारे जो उनका ब्रांड नेम है और उनका जो टैगलाइंस है उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए. अगर वो टैगलाइन कर रहे हैं 100% नेचुरल, सो इफ वो चेक करेंगे कि इस दिस प्रोडक्ट इज 100% नेचुरल और नॉट. तो इसके ऊपर कोई भी कंज्यूमर जो है वो केस कर सकता है अगर दे आर राइटिंग 100% नेचुरल. तो अगर वो नहीं ऐसा कर रहे हैं, लिख रहे हैं इंग्रेडिएंट में कुछ और, तो कोई भी इन पे केस कर सकता है. In the food safety management system, everybody is given responsibility after production, and more motivation is provided with more participation. Additionally, resources are more efficient and losses are reduced, and the enterprises is moving towards total quality system. The last topic is standard sanitization operation procedures. That is SSOP. Standard sanitization operation procedures are written procedure for defining sanitary conditions in food enterprises. That means companies are making banana chips, potato chips kind of thing, and as well as for defining sanitary condition to ensure a healthy and safe product. So sanitization checks can be done in two ways. Internal audit, दो टाइप के ऑडिट होते रहते हैं. एक इंटरनल होता है एंड एक एक्सटर्नल होता है. इंटरनल में क्या चेक होता है? Sanitization should be included in the quality assurance program and explain to audit how could be. Like internal audit इसलिए होता है ताकि external audit में वो पास कर सके. When inspection program is being carried out, areas and storages should be included in this program. And जो audit करते हैं, the members of this audit are their in-house members. In the audit, each section should be handled separately, and the status of before and after sanitization must be specified separately on the report. What happens in external audit? When the operation is audited by an external auditor or expert, a good review should be made in terms of sanitization. If they don't get good review, then उनका ISO certification cancel हो सकता है, and कुछ भी criteria को उनको change करना पड़ता है. then फिर उनको फिर से audit करा के certification लेना होता है. The areas converted by the audit are control of the operation environment, control of food processing departments, warehouse control, location outside the producing areas, basement and roof, control of personnel and facilities, sanitization application control. So these are the topics on which they work for maintain standard sanitization. Okay, so now it is completed, in which we have studied the sanitization, processing, how to manage shelf life and all. So अब मैं थोड़ा आपको डायटेटिक्स पार्ट का मेन की थिंग्स बताऊंगी, जिससे आप को जब भी आप कोई डाइट प्लान करेंगे या अपने लिए या किसी फैमिली के लिए कुछ कभी प्लान कर रहे हैं, तो क्या आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो फर्स्ट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज डायबिटीज. फर्स्ट इसमें क्या होना चाहिए की रोल? नंबर 1, इट शुड बी मॉडरेट फैट, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट में भी, वेट अ मिनट प्लीज.
एंड कार्बोहाइड्रेट में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज करने हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन शुड बी नॉर्मल एज नॉर्मल डाइट, जितना नॉर्मल डाइट में आप यूज करेंगे उतना ही इसमें भी आप प्रोटीन्स यूज करेंगे। नाउ वी टॉक्ड अबाउट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन भी सेम होगा जैसे कि नॉर्मल डाइट में होगा, ठीक है। नॉर्मल डाइट दैट मीन्स अ बेसिक डाइट जो हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए करेंगे, जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू वेट सब कुछ हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल होता है, लाइक अगर फीमेल है तो 2200 अराउंड देते हैं, मेल है तो 2400 देते हैं, तो इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। देन जनरली आज की डेट में क्योंकि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो 2000 किलो कैलोरी सफिशिएंट फॉर नॉर्मल लाइफस्टाइल। बट जब हम वेट लॉस करना है तो हम ग्रेजुअली 100 किलो कैलोरीज कट डाउन करके उनको एक ऐसा डाइट में लाते हैं जिससे कि उनका जो वेट है वो जस्ट मेंटेन करने के लेवल में हो। मान लीजिए कोई पर्सन ए है एंड कोई पर्सन बी है, ओके। तो ए को वेट लॉस करना है एंड बी को एक स्टक रहना है, जो उनका कैलोरी जो उनका वेट है उसमें रहना है। तो ए को जब वेट लॉस करना है, हम उसका पहले डाइट प्लान लेंगे कि वो कैसे खा रहे हैं, दैट इज डाइट हिस्ट्री वो लेंगे, उसका एक एवरेज कैलकुलेशन करेंगे वो कितना कैलोरीज खा रहा है। फिर हम उस कैलोरीज से थोड़ा कट डाउन करेंगे, कैलोरीज पार्ट ओनली, बाकी सब वैसा ही रहेगा। अगर प्रोटीन लैकिंग है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डाइट में प्रोटीन लैकिंग रहता है, तो प्रोटीन लैकिंग है तो प्रोटीन इंक्रीज करेंगे, बिकॉज अगर प्रोटीन लैकिंग डाइट है तो भी वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आती है, ओके। सो नॉर्मल डाइट को इस तरह से हम प्लान करेंगे। सेकेंडली हम जो बात कर रहे थे डायबिटिक डाइट में, तो बाकी सब नॉर्मल डाइट की तरह ही रहेगा, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो जरूर से हम कार्बोहाइड्रेट पार्ट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के थ्रू देंगे। बाय बिकॉज इसमें जो सप्लाई होगा कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज में जो कन्वर्शन होगा वो ग्रेजुअली होगा। अचानक से जैसे पर्सन है टू पर्सन, एक ने जूस पिया जिसकी कैलोरीज है 1500, दूसरे ने पिया सत्तू वाटर, ठीक है। सत्तू वाटर इज अ ग्राउंड ब्लैक ग्राम पाउडर, रोस्टेड ब्लैक ग्राम पाउडर, उसने उसका ड्रिंक पिया, लेकिन कैलोरीज दोनों की सेम है, ठीक है। उसका भी वैल्यू आपका 1600 दोनों का है। तो उसने जब पिया तो सत्तू वाटर का जो इनटेक है जाएगा 1600 ही, मगर वो इमीडिएटली शुगर नहीं बढ़ाएगा, वो ग्रेजुअली ब्लड में धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होगा और वो ब्लड शुगर लेवल को शूट नहीं करेगा। बट जो जूस है वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में एब्जॉर्ब होगा और तुरंत हाई होगा शुगर, एंड फिर क्योंकि वो हाई हो गया फिर तुरंत वो लो भी हो जाएगा। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट तो जितना देना है लाइक मॉडरेट वो देंगे ही, अराउंड 1600, 1700, 1800 तक भी देते हैं, 14 to 1800, तो यहाँ तो देंगे ही। लेकिन जो सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, सिर्फ कैलोरीज नहीं देखेंगे, हम उसका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। ओके, द मेन थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग हम डायबिटिक डाइट में क्या देखेंगे कि पेशेंट को बार बार खाना है। की इज स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। पेशेंट अगर दिन भर में 1600 कैलोरीज पे है, तो क्या वो सिर्फ 3 बार में उसको ले रहा है या उसको 6 टाइम में डिवाइड करके ले रहा है। आपको कोशिश करना है एटलीस्ट 6 मील होनी चाहिए उसकी डे टाइम में। अर्ली मॉर्निंग की मील अगर आप नट्स दे रहे हैं तो वो भी एक मील काउंट होगा। बेड टाइम में अगर मिल्क ले रहा है तो वो भी एक मील काउंट होगा। तो इस तरह से 3 मेन मील्स एंड 3 इन बिटवीन मील्स को हम 6 मील में कन्वर्ट करके उसको शुगर को नॉर्मल करेंगे। एंड थर्ड थिंग जो हम डायबिटिक डाइट में ध्यान रखते हैं दैट इज नो फास्टिंग। कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हैं, बट आई नेवर रिकमेंड टू डायबिटिक पर्सन, क्योंकि इसमें जो गैप हो जाएगा 12 to 16 आवर्स का,
वो डायबिटिक पर्सन के लिए काफी हार्मफुल है। लाइक ये एक अलग साइंस है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, बॉडी को क्लीन करो, मगर आप हर केस में इसको नहीं चला सकते। आपको देखना है केस क्या है, लाइक पेप्टिक अल्सर एंड रेक्टम में अल्सर एंड डायबिटीज, इन सब केसेस में आपको सेम चीज नहीं चलानी है। इसमें देखना है कि पर्सन का शुगर लेवल क्या है एंड उसका एम्प्टी स्टमक ड्यूरेशन ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक स्टमक एम्प्टी रहेगा तो अगर HCl सिक्रीशन हो रहा है तो वो उसके लाइनिंग को खराब करेगा। सेकेंड थिंग, डायबिटीज में शुगर को फॉल करेगा काफी लॉन्ग टाइम से। अगर वो फास्टिंग में है लाइक 16 आवर 12 आवर्स, तो वो उस टाइम वो शुगर को फॉल हो रहा है। ठीक है, तो आई डोंट रेकमेंड एनी डायबिटिक पर्सन टू फास्ट मोर देन 10 आवर्स। लाइक डिनर का जो टाइम है, अगर वो 8 o'clock कर रहा है, उसके बाद एक बेड टाइम मील होता है जैसे 10 o'clock जैसा, उसके बाद नेक्स्ट डे उनको 6 o'clock 7 o'clock उनको अर्ली मॉर्निंग मील देना होता है। तो इससे उनका फास्टिंग ड्यूरेशन कम होता है, बिकॉज मिल्क इज बेस्ट थिंग टू टेक एट बेड टाइम, बिकॉज ये काफी स्लो डाइजेस्ट होता है एंड सेल्स रिपेयर करता है एंड आपका शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। तो दिस इज बेस्ट थिंग। जिनको भी हम दे सकते हैं मिल्क, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है या किसी भी रीजन से आप नहीं दे सकते तो दूसरी बात है, बट मैक्सिमम कोशिश करिए कि आपको बेड टाइम में मिल्क जरूर रखना है डायबिटिक केसेस में। सेकेंड थिंग, पेप्टिक अल्सर्स होते हैं जिसमें लाइनिंग जो है म्यूकोजल लाइनिंग या फिर आपके स्टमक की लाइनिंग में अल्सर हो जाता है, क्योंकि बहुत देर तक फास्टिंग किया या फिर बहुत ऐसा खाना खाया जो बहुत ज़्यादा HCl सिक्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से तो आप उस केस में भी ध्यान रखिए कि फास्टिंग नहीं हो। सेकेंड थिंग, ज़्यादा जैसे हम डायबिटिक डाइट ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैंने क्लियर कर लिया पॉइंट्स, अब हम पेप्टिक अल्सर का सिर्फ मैं बता रही हूँ। तो इसमें नो फास्टिंग फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका जो इरिटेट करने वाले हैं चीजें लाइनिंग को, जैसे कि रेड चिलीज है ना, वो एकदम नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि चिलीज जो है रेड चिलीज वो अंदर लाइनिंग में जाके सेटल हो जाती है। उसके बाद वो जब तक निकलती नहीं लाइनिंग से, स्टमक जो है वो बार बार HCl सिक्रीट करते रहता है, तो उससे और हार्म होगा उनका लाइनिंग को। तो सेकेंड थिंग इज दिस, यू हैव टू ईट ब्लैंड एंड एक और चीज, इसमें आपको ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा नहीं खाना है। टेम्परेचर शुड बी मेंटेन लाइक बॉडी टेम्परेचर, जैसा हमारा बॉडी टेम्परेचर है, छूने से हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगे, छूने से हमें ज्यादा ठंडा नहीं लगे, ऐसी मील हमें लेनी है जिससे हमारा स्टमक को फ्रेंडली फील होगा। उसको ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके टेम्परेचर पे। सो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस भी केसेस में लाइक गैस्ट्राइटिस है, जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड है, GI ट्रैक से रिलेटेड है, उसमें हमें टेम्परेचर का ध्यान देना है कि पेशेंट बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म तो नहीं खा रहा है। एंड नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं पेप्टिक अल्सर में, दैट इज एक मिल्क डाइट होती है जिसमें हम ठंडा मिल्क देते हैं पेशेंट को, इसके अलावा कुछ भी नहीं देते, बिकॉज मिल्क इज वेरी सूदिंग टू आवर स्टमक, बट इट शुड बी लो फैट और हम कह सकते हैं स्किम मिल्क। जब बहुत ज्यादा गर्मी के टाइम में कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि खाने की इच्छा ही नहीं होती, उल्टी लगती है, नॉजिया वोमिटिंग ऐसा लगता है, तो उस केस में हम ठंडा मिल्क देते हैं। मैंने बोला कि ठंडा गर्म नहीं खाना है, लेकिन अगर जैसा नॉजिया वाले केसेस है और गर्मी की वजह से जो चीजें हो रही हैं, तो उस केस में हमें ठंडा मिल्क देना है, नथिंग एल्स, कुछ भी और मत दीजिए। जस्ट आप उनको पेशेंट को 1 से 2 दिन आप ठंडे दूध पे रख दीजिए, लो फैट, तो उनको काफी आराम मिलेगा एंड उनको खाने की एपेटाइट फिर से वापस आएगी। नेक्स्ट जो आपका GI से रिलेटेड है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या ध्यान रखना है, अगर 2 तरह का कॉन्स्टिपेशन होता है, एक प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, एक थोड़ा दिन के लिए हुआ है लाइक 2-3 डेज से है, ठीक है।
तो अगर क्रॉनिक है, प्रोलॉन्ग है, काफ़ी टाइम से है पेशेंट, 5-6 दिन से कॉन्स्टिपेशन में है एंड काफ़ी पेन में है, तो उस केस में हम सिंपल सॉरी सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट, सॉल्युबल फाइबर देंगे। दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल फाइबर देंगे जो स्टूल को बल्की नहीं बनाएगा बट बाइंड करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूल ऑलरेडी बहुत दिन से स्टक है, जमा है रेक्टम में एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब और उसको बल्की बना के और हर्ट नहीं करना है लार्ज इंटेस्टाइन को, तो इस केस में हमको उसको जस्ट निकालना है एब्डोमेन से। तो इस केस में हम सॉल्युबल फाइबर देंगे, ओके, लाइक बनाना इज सॉल्युबल फाइबर, एप्पल, कुक्ड एप्पल इज सॉल्युबल फाइबर, उसका पील नहीं देंगे, तो ऐसी चीजें देंगे। एंड अगर पेशेंट को कुछ दिन से ही हुआ है, लाइक 2 days से ही वो कॉन्स्टिपेटेड है, तो उस केस में हम या पॉटी हो नहीं रही है 1 दिन से 2 दिन से एंड फॉर्मेशन नहीं है, पेट में ज्यादा दर्द नहीं है, जस्ट पेशेंट को फील है कि मुझे पॉटी नहीं हो रही, इस तरह के केसेस में आपको स्टूल को फॉर्मेशन करना है, पहले बाइंड करना है, क्योंकि वहां पे थोड़े पार्टिकल्स रहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में एंड उसको एक बाइंड करके रिमूव करना है, वो केस है। तो उस केस में आपको सॉल्युबल फाइबर भी दे सकते हैं, साथ में इनसॉल्युबल फाइबर भी देना है। तो सॉल्युबल फाइबर ऐसे जो आप दोनों केसेस में दे सकते हैं। तो जो थोड़े टाइम से है कॉन्स्टिपेटेड, तो उसमें आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दीजिए एंड कार्ब्स थोड़े दिन के लिए आप बंद कर सकते हैं, लाइक 1 to 2 days के लिए। पेशेंट को कुछ नहीं होगा, अगर पेशेंट बहुत ही अंडरवेट नहीं है या बहुत ही वीक नहीं है, तो आप अगर नहीं भी देंगे तो हो जाएगा। जस्ट हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो करना होता है कि हमें पहले किस पे काम करना है। तो आपको पहले पेशेंट का स्टूल पे काम करना है, तो उसके लिए आपको फाइबर्स मैक्सिमम देने हैं, लाइक बनानास, एप्पल्स, पोमेग्रेनेट, ये सब चीजें उनको देनी है। नाउ इसी से रिलेटेड है लूज मोशन। लूज मोशन के केस में आपको सॉल्युबल फाइबर देना है, जिसमें कि आपको लूज मोशन में होता क्या है, स्टूल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जो भी वेस्ट आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में वो जस्ट निकल रहा है, वो फॉर्म नहीं कर रहा है, उसको सॉलिडिफाई नहीं कर पा रहा है। तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए आपको चाहिए सॉल्युबल फाइबर, लाइक बनाना, पोमेग्रेनेट के सीड्स जो होते हैं, पेशेंट हैव टू ईट विथ सीड्स, जूसेस नहीं देने हैं, आप उसको उनको स्मूदी दे सकते हैं विथ सीड्स के साथ ग्राइंड करके, क्योंकि जो पोमेग्रेनेट है वो बहुत अच्छा है स्टूल को फॉर्मेशन बल्कि बनाने के लिए, फॉर्मेशन बाइंड करने के लिए। तो अगर इंटेस्टाइन का गुदे साफ नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, तरह के टर्म यूज कर रहे, तो उनको लाइक 4 पोमेग्रेनेट आप 2 मील्स में डिवाइड करके आराम से दे सकते हैं, साथ में 1 मील में बनाना दे सकते हैं, जिससे इनकी उनका फॉर्मेशन होगा प्रॉपर एंड वो निकल पाएगा स्टूल बॉडी से बाहर वेस्ट। एंड जब भी उनको कॉन्स्टिपेशन है जो कि थोड़े टाइम से है, तो उसमें लीफी वेजिटेबल जरूर ऐड करना है। नाउ यहाँ पे आपका जीआई से रिलेटेड ऑलमोस्ट हो गया। देन थर्ड थिंग जो काफी कॉमन है, दैट इज फीवर। फीवर में कैसी डाइट होती है, फीवर में अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम से फीवर में है तो ध्यान रखना है उनका जरूर वेट लॉस हुआ होगा, प्रोटीन लॉस काफी होता है फीवर में, तो प्रोटीन पार्ट को कंप्लीट करने के लिए उनको लाइक आप क्या दे सकते हैं, दैट इज सूप्स जो है, आप सूप्स में पनीर क्यूब्स, छेना ऐड करके दे सकते हैं। अगर पेशेंट एगिटेरियन है तो आप एग्स का सूप दे सकते हैं। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे आपको हाई प्रोटीन, नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, लाइक मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी आपको मॉडरेट देना है, फैट ज्यादा देने की जरूरत नहीं है उस टाइम। एंड विटामिन मिनरल विल बी लाइक जो भी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अकॉर्डिंग वही होगा। तो यहाँ पे हो गया आपका फीवर, जिसमें हमें मेन फोकस करना है आपका प्रोटीन्स पे, क्योंकि सेल्स बहुत डैमेज होते हैं जब फीवर होता है, तो बॉडी सेल्स डैमेज होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, तो उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा
प्रोटीन लगता है। अगर कोई पर्सन 60 kg का है तो नॉर्मली उसके लिए लगता है 60 kg 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बट पेशेंट अगर फीवर में है तो हम 1.2 टू 2 kg पर kg ऑफ बॉडी वेट तक हम उसको प्रोटीन्स दे सकते हैं। Now, next is we can discuss that is renal diet. रीनल डाइट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। लाइक थोड़ा कंडीशन में अलग डाइट होगी, डिफरेंट कंडीशन में अलग होगी। तो जब जो सबसे कॉमन है, अगर हम बात करें जैसे कि अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, किडनी इज अफेक्टेड। अगर हम बात करें सीकेडी की, दैट इज क्रोनिक डिजीज ऑफ किडनी। तो सीकेडी में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से उसका किडनी इफेक्ट होते होते आज ये स्टेज में है कि उसका प्रोटीन को पोटाशियम, सोडियम एंड क्रिएटिनिन मेंटेन नहीं हो पा रहा है काफी टाइम से, किसी रीजन से, मे बी डायबिटीज और हाइपरटेंशन की वजह से उनका किडनी इफेक्ट हुआ है। तो उस केस में हम सबसे पहले देखेंगे वो कितना फंक्शन कर रहा है किडनी। अगर वो सीकेडी 1 स्टेज 1 में है, 2 में है, जब डायलिसिस की उनको जरूरत नहीं है, किडनी थोड़ा काम कर रहा है, तो उस केस में हमको प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करना है, कम से कम देना है। लाइक हम देते हैं जनरली 2-3 तरह की होती है, दैट इज 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, इतनी चलती है हॉस्पिटल्स में। तो मेनली 30 एंड 40 चलती है क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं कर सकते, तो 30 एंड 40 चलती है। तो 30 ग्राम्स में क्योंकि हम बहुत कम प्रोटीन दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बॉडी को प्रोटीन की जरूरत नहीं है, उस टाइम बॉडी को जरूरत है, बट बॉडी उस प्रोटीन को फिल्टरेशन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम कम दे रहे हैं। ओके, तो अब हमें ऐसा प्रोटीन देना है जो वेस्ट कम बना रहा है। बिकॉज हम प्रोटीन इसीलिए कम देते हैं क्योंकि वो उसको फिल्टरेशन नहीं कर पा रहा है, उससे वेस्ट जो बन रहा है उसको निकाल नहीं पा रहा है, इसीलिए हम उसका प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि अब प्रोटीन उसके लिए खराब है, बिकॉज वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है उससे बने हुए वेस्ट को, इसीलिए हम कम दे रहे हैं। तो हमको ऐसे प्रोटीन्स देने हैं जिससे वेस्ट कम बने। आप जो 30 ग्राम दे रहे हैं वो भी ऐसा देना है जिससे वेस्ट कम बने और बॉडी उतनी उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को यूज कर सके। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के को वेस्ट कम बनाते हैं एंड मैक्सिमम एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 30 ग्राम खाया और सिर्फ हम 15 ग्राम ही उसका यूज किया, बाकी उसका वेस्ट चला गया। तो हमें ऐसा प्रोटीन्स लेना है। तो इसमें क्या आएगा फर्स्ट क्लास प्रोटीन में, दैट इज एनिमल सोर्स प्रोटीन, जो हम कह सकते हैं जो भी एनिमल से आया है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन दैट मीन्स मीट, फिश, चिकन, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स एंड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये सारे एनिमल सोर्स से है। बट इसमें भी हम सारा कुछ नहीं दे सकते। अगर पेशेंट का, आप पॉइंट्स थोड़े नोट डाउन करिए इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं एंड थोड़ा थोड़ा से डाइट चेंज होती है। अगर पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, मोर देन 1.2 से ज़्यादा है क्रिएटिनिन, तो हम फ्लैश बिल्कुल भी नहीं देंगे। नो फिश, चिकन, मटन, ये सब कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे क्रिएटिनिन लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। ओके, तो हम इसमें क्या दे सकते हैं प्रोटीन्स के लिए? अगर पेशेंट एगिटेरियन है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमें क्योंकि एग्स ऐसा एल्बुमिन है एग्स का कि हम जितना खाते हैं उतना ऑलमोस्ट बॉडी को मिल जाता है, उससे वेस्ट नहीं बनता। अगर पेशेंट नहीं खाता एग्स तो आप उसको मिल्क प्रोडक्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक कर्ड के फॉर्म में दे सकते हैं, छेना के फॉर्म में दीजिए, वो सबसे इजी मेथड है। दाल को हम सेकंड क्लास में लेते हैं क्योंकि हम जितना खाते हैं उतना ऑलमोस्ट उसका वेस्ट काफी बन जाता है, तो इसीलिए हम दाल को काफी रिस्ट्रिक्ट करते हैं रीनल डाइट में। एंड अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सीकेडी स्टेज 5 में है और पेशेंट डायलिसिस पे जा चुका है, काफी लेट आया हमारे पास, या किसी रीजन से उसका क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा और उनको डॉक्टर को डायलिसिस में डालना पड़ रहा है, तब हमें प्रोटीन
ज्यादा देना है, लाइक 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, जहां पहले हम नॉर्मल से भी कम दे रहे थे। एक्सक्यूज मी। लाइक हम अगर 60 केजी पर्सन को 60 ग्राम भी नहीं दे पा रहे थे, वहाँ 30 to 40 ग्राम दे रहे थे, वहीं उसी पर्सन जब वो डायलिसिस पे चला जाएगा तब हमें उसको लाइक मोर देन 60, लाइक 90 ग्राम 80 ग्राम उतना देना पड़ता है। बिकॉज अब जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो मशीन के थ्रू हो रहा है, बॉडी का जो जो भी ब्लड में फिल्ट्रेशन हो रहा है प्रोटीन का, वेस्ट का, तो अब वो डायलिसिस के थ्रू हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है वेस्ट का एंड सॉरी प्रोटीन्स का। तो उस केस में हमें ज्यादा देना होता है एंड हीमोग्लोबिन काफी लो चला जाता है, तो इसीलिए हमें वहां पे 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन देना होता है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर 1.2 आप दे रहे हैं फर्स्ट स्टार्ट करें डायलिसिस में, तो आपको 1.2 इंटू केजी ऑफ बॉडी वेट जो भी पर्सन का है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसका रिक्वायरमेंट निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं कैलकुलेट करूंगी, अगर कोई पर्सन है 60 केजी का एंड उसको हम वो पेशेंट डायलिसिस पे है और हमें हमें उसको 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट देना है, तो ही विल बी ऑन 90 केजी प्रोटीन्स पर डे। तो उस उतना उनको देना पड़ता है। तो रीनल डाइट में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, उनकी रिपोर्ट्स देखनी होती है, आप पेशेंट को विजिट करना होता है मंथली, या फिर जब जैसे भी वो कंसल्ट करें ऑनलाइन उनको रिव्यू करना होता है मंथली, जिससे उनका पोटाशियम, सोडियम एंड क्रिएटिनिन मैनेज करें। हम अपने साइड से ये तीनों मैनेज करना हमारा काम होता है कि आप उनके जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं उनको नॉर्मल कर सके। तो इसमें क्या गड़बड़ होता है, जनरली हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, सोडियम, पोटाशियम एंड क्रिएटिनिन ये सारे फ्लक्चुएट होते हैं, तो इनको नॉर्मलाइज करना है। अगर सोडियम कम आ रहा है ब्लड में तो यू हैव टू इंक्रीज सोडियम इनटेक। अगर पोटाशियम, जनरली जो केसेस होते हैं, जो स्टार्टिंग केसेस होते हैं सीकेडी में, तो पोटाशियम वहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, ब्लड में पोटाशियम दिखता है, तो आपको लो पोटाशियम डाइट देने हैं, जिसमें कि आप फ्रूट्स ज्यादा नहीं दे सकते, साइट्रस फ्रूट बंद करने होते हैं एंड पोटैटोज में ज्यादा पोटाशियम होता है, तो एक लिस्ट हम देते हैं कि जिसमें ज्यादा पोटाशियम है वो आप डाइट में मत खाइए, या क्या क्या आप खा सकते हैं उसकी एक लिस्ट देनी होती है। तो हाई पोटाशियम, लो पोटाशियम ऐसे करके आपको उनको देनी होती है। एंड सोडियम का आपको ज्यादा नहीं करना है, जस्ट उनको सॉल्ट के थ्रू ही आप बता सकते हैं कितना ग्राम। जैसे अगर मैंने डाइट पेशेंट को 5 ग्राम सॉल्ट पे रखा है पर डे, तो उनको क्या टेक्निक यूज करनी है, दैट इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कीज जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। तो इफ पेशेंट इज ऑन 5 ग्राम सॉल्ट, तो उनको क्या करना है, लाइक जनरली आजकल क्या करते हैं, लो सोडियम ले लेते हैं, या लेकिन उससे आप चेक में नहीं रहेंगे कि आप कितना सोडियम खा रहे हैं। तो नॉर्मल जो बेसिक सॉल्ट होता है उसको लेना है, उसको 5 ग्राम मेजरमेंट करना है एक बार के लिए। उसको आप किसी ट्रांसपेरेंट, जैसे पेन की कैप होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो इजीली पेशेंट कर पाते हैं। जो यूज एंड थ्रो वाले पेन आते हैं उसकी कैप होती है, उसमें आप डाल दीजिए, उसको मेजरमेंट कर लीजिए कितनी लेंथ तक वो आता है सॉल्ट उसमें, फिर उसको मार्क कर दीजिए। एवरीडे उसमें डाल के आप मार्क कर दीजिए, दिन भर आप उसको यूज कर लीजिए, लाइक किसी कंटेनर में रख के, कि आपको उसी में दिन भर चलाना है। एंड कई लोग को कंफ्यूजन रहता है कि कच्चा सॉल्ट नहीं खाना है, पक्का सॉल्ट खाने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका सॉल्ट पक्का हो कच्चा हो, सोडियम इनटेक सोडियम कंटेंट दोनों में सेम ही रहता है। कच्चा सॉल्ट हम इसीलिए कुछ लोग मना करते हैं, क्योंकि आप जैसे कच्चा सॉल्ट कहाँ पे यूज करते हैं, मेनली सैलेड्स के ऊपर, राइट। तो आप उन चीजों में मत डालिए जो आप बिना सॉल्ट के खा सकते हैं। सैलेड हम बिना सॉल्ट के खा सकते हैं, तो आप वहां पे मत यूज करिए।
तो इसीलिए थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया है लोगों के बीच में कि हम कच्चा सॉल्ट नहीं खा सकते, अगर हम उसी को थोड़ा भून लेंगे, सेक लेंगे तो हम उसको खा पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्वांटिटी मैटर्स, कि आप कितना क्वांटिटी खा रहे हो। So these thing is all about renal diet, इसमें किडनी इफेक्टेड होती है। और किडनी क्यों जनरली इफेक्टेड होती है? ड्यू टू हाई प्रेशर। बहुत टाइम से अगर पेशेंट प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहा, बहुत टाइम से पेशेंट डायबिटीज को मैनेज नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से किडनी इफेक्टेड होती है। क्योंकि प्रेशर के केस में वो जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होता है, एंड किडनी की जो पतली पतली लाइनिंग्स होती हैं उसको प्रेशर की वजह से इफेक्ट कर देता है। एंड डायबिटीज में भी ऐसे ही होता है, काफी नैरो आर्टरीज, कैपिलरीज ये सब होती हैं, तो कैपिलरीज को डैमेज करता है। शुगर जाता है जब, तो उसकी लाइनिंग्स खराब होती है। तो इस तरह से जनरली किडनी इफेक्टेड होती है। एंड बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। मेनली यही दो रीजंस होते हैं। नाउ वी टॉक्ड अबाउट रीनल, और क्या डिजीजेस होते हैं, जैसे कि epileptic diet. This is very unique diet, जिसमें हम पेशेंट को वेरी लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई इन फैट डाइट देते हैं। इसमें कैसे डाइट वर्क करती है? पेशेंट को मान लीजिए एपिलेप्टिक होता क्या है पहले, तो इसमें जो है पेशेंट को करेंट्स लाइक जो सर्किट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, और पेशेंट को झटके लगते हैं। आपने मिर्गी वर्ड सुना होगा, लाइक पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है समटाइम्स और मिसबिहेव करता है, उसको समझ नहीं आता वो कर क्या रहा है, गिर जाता है चलते चलते। तो इस तरह की चीजें एपिलेप्सी में होती हैं। एंड छोटे बच्चों में अगर होता है तो उनका डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है। जब भी अटैक आता है तब ब्रेन डैमेज होता है। जब भी उनको अटैक आ रहा है तब उतना ज्यादा जो ब्रेन के न्यूरॉन, ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। तो हमारा काम होता है उन ट्रिगर्स को रोकना, उन अटैक्स को रोकना, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज ना हो। ओके, तो एपिलेप्टिक डाइट में हम क्या देते हैं? मेनली इसमें हम हाई फैट देते हैं। इसमें जो भी कैलोरी सप्लाई होती है वो फैट के थ्रू होती है। जो भी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की वो 90% फैट के थ्रू ही होती है। तो इसमें हम जनरली बटर, घी एंड कोकोनट ऑयल, मेरे पेशेंट्स को मैं मैक्सिमम कोकोनट ऑयल पे रखती हूँ, जिससे कि उनका जो रिक्वायरमेंट है फैट का वो कंप्लीट हो। एंड काफी सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कोकोनट ऑयल में मिल जाते हैं, बटर फैट पे नहीं मिलते। एंड शुगर बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है इस डाइट में। लाइक सिंपल शुगर बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना है, ताकि वो जो ट्रिगर्स हैं शुगर की वजह से वो ना आए। थर्ड थिंग, जो भी कार्ब्स दे रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। एंड जो भी आपके प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनमें जो रेशियो होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का वो 1:4, 1:2, 1:3 ऐसा होता है। तो प्रोटीन क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन भी कैलोरीज देता है, तो हमें मैक्सिमम कैलोरीज फैट के थ्रू देनी है, इसलिए हम प्रोटीन बहुत कम दे पाते हैं। लाइक 25 ग्राम, 30 ग्राम इतना ही प्रोटीन्स दे पाते हैं। पेशेंट का डेवलपमेंट के लिए उतना हो जाता है सफिशिएंट, बट यू हैव टू गिव मेनली इन दिस कोकोनट ऑयल। जो इसमें MCT बोलते हैं वो MCT होना चाहिए। तो बेस्ट सोर्स उसके लिए कोकोनट ऑयल है, उसके थ्रू हम कैलोरीज सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज और जो वो ट्रिगर्स को रोकने का जो काम करती है वो है पिस्ता जो होते हैं, तो वो काफी रोल प्ले करती है ट्रिगर्स को कम करने में। तो दिन भर में एक मील में तो 5 to 6 पिस्ता पेशेंट को दिया जाता है।
अगर पेशेंट इतना मेच्योर नहीं है कि वो टेस्ट एंड ऑल समझे, उस केस में प्रॉब्लम नहीं होती डाइट फॉलो करने में। बट अगर पेशेंट थोड़ा बड़ा है एंड वो इतना डेवलप है कि उसको समझ में आ रहा है टेस्ट एंड ऑल, तो हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है एंड टेस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। तो नहीं तो जनरली मेरे पेशेंट को खिचड़ी दलिया ही मैं देती हूँ एंड ऐसे कार्ब्स देती हूँ जो कॉम्प्लेक्स है, लाइक किनोवा हो गया, फिंगर मिलेट हो गया, तो एंड कोडो एक मिलेट है सिक्किम का। तो इस तरह की चीजें, या ब्लैक राइस, राइस में आप कौन सा दे सकते हैं, ब्लैक राइस इज बेटर देन व्हाइट राइस। तो इस तरह की चीजें देनी है जो इमीडिएट शुगर कन्वर्ट नहीं हो शुगर में। तो ये चीजें ध्यान रखनी है एपिलेप्टिक डाइट में। इसको हम कीटो डाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं कीटो डाइट इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं मॉडिफाई करके थोड़ा सा इसको, एपिलेप्टिक में थोड़ा चेंजेस होता है। तो बेसिकली जो एपिलेप्टिक डाइट होती है दैट इज कीटो डाइट, बट हम इसको मॉडिफाई करके हम इसको बोल सकते हैं मॉडिफाइड एपिलेप्टिक डाइट। सो दीज आर द की थिंग्स जो आपको डाइट प्लान करने में ध्यान रखनी है। एंड इट इज अराउंड 7:52। कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछिए। Yeah, so I'm Sudhakar here. यस Uh, yes, you're telling that keto diet, is it the fat metabolism workout or? Sorry? Yeah, so I came to know that that's the one, that's the two metabolisms are. One is the glucose metabolism and another one is the fat metabolism. Yes. Yeah. So in It's- this diet, we supply energy from fat metabolism. Okay. Yes. Yes, keto diet belongs to the fat metabolism or glucose metabolism. It is belongs to fat metabolism. Yeah, fat. Thank you. Generally, some dietitians use this diet for weight loss only, but I don't recommend. I don't use that keto diet in weight loss because weight loss is a thing जो आपको life long मेंटेन करनी है, राइट? आपको बॉडी वेट मेंटेन करना है, और इस डाइट में हम बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, बहुत गुड न्यूट्रिशन। एंड दिस इज नॉट वेरी कॉमन सोशल डाइट जो आपका सोशली खाया जा रहा है। दिस इज नॉट काइंड ऑफ दैट डाइट। So I use keto diet only in epileptic because in epileptic diet we don't have any another option, क्योंकि Okay. इस केस में पेशेंट को डाइट पे ही डिपेंड होना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे कंपल्सरी है फैट मेटाबॉलिज्म, दैट्स व्हाई आई यूज दिस। बट वेट लॉस के केस में आई डोंट रिकमेंड कीटो डाइट बिकॉज इट इज नॉट कॉमन डाइट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल डाइट जो सोसाइटी में नॉर्मली लोग खाते हैं। दैट्स आई डोंट रिकमेंड। एंड सेकेंड थिंग, काफी ज्यादा फैट देने से, लॉन्ग ड्यूरेशन से तक देने से लीवर पे भी इफेक्ट आ सकता है। एंड बहुत सारे अदर डाइट्स भी हैं, हम बहुत इजी मेथड्स हैं जिससे हम वेट लॉस कर सकते हैं। सो व्हाई वी विल गो विथ कीटो डाइट। सो आई रिकमेंड ओनली फॉर एपिलेप्सी this keto diet. Don't use in any other diseases and weight loss kind of thing. Okay, thank you. And one thing I have to add, for any diseases except epilepsy and any common diseases, आपको डाइट के साथ एक्सरसाइज भी करनी होती है। सोलो डाइट करने से बहुत सारे केसेस में रिजल्ट तो आता है, मगर उतना बेनिफिशियल नहीं है बॉडी के लिए। कोशिश करनी चाहिए साथ में एक्सरसाइज भी रिकमेंड करने के लिए।
वेट लॉस आप इजीली कर सकते हैं विदाउट एक्सरसाइज, ओनली विद डाइट, बट फिर भी आपकी बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए टू लाइक फंक्शन प्रॉपरली। सारे ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए होता है। आप वेट लॉस कराइए पेशेंट्स का ओनली विद डाइट, बट रेकमेंड करिए कि एटलीस्ट वो डेली 10 मिनट्स और वीकली कम से कम हाफ एन आवर तो ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, बिकॉज वी आर डाइटिशियन, वी वर्क ऑन ओनली डाइट, but we should mention in note, but that is walking at least 30 minutes and cycling, anything you have to recommend exercise part also, because it is also important for body metabolism and proper functioning. As I मेरे घर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेरी डॉटर का काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया था, बिकॉज उनके स्कूल में होम डाइट अलाउ नहीं है। आप घर की चीज़ें उन्हें नहीं दे सकते, जो भी खाना है उनको स्कूल से ही खाना होता था। एंड वहाँ पे वो 7:30 जाते हैं एंड 4 o'clock उनकी छुट्टी होती है। तो इस बीच में वो 4 मील्स देते हैं जिसमें काफ़ी शुगर्स था, एंड जिसकी वजह से टीन एज लाइक 2-3 साल पहले उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था। देन ही अवेयर, आई काउंसिल दैट, उसको अवेयरनेस हुआ एंड मैंने कुछ कंप्लेंट्स भी की, मेल्स किया स्कूल में, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए अपने ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में। इवनिंग स्नैक्स तो मोस्टली मैंने उसका स्कूल में बोला नहीं अलाउ करने के लिए, बंद करने के लिए, ताकि वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो मैंने रिस्ट्रिक्ट करवा दिया स्कूल से बोल करके आप उसे मत खाइए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे अपने साइड से तो दे प्रेशराइज, दे हैव टू ईट विच दे आर सर्विंग। तो हमें अपने साइड से मील करना होता है एंड बोलना होता है कि हम नहीं चाहते कि आप लोग वो मील खाएं, मगर किसी भी केस में हम घर का खाना उन्हें नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से उसका वेट काफ़ी बढ़ गया था। एंड फिर जब मैंने उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया एंड उसकी डाइट चेंजेस की, होम डाइट में भी चेंजेस किए, तब वो काफ़ी ईजिली, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग, राइट नाउ शी इज़ 15, तो काफ़ी ईजिली उसने वेट लॉस कर लिया। आज वो बहुत अच्छा वेट मेंटेन कर रही है, मगर शी डोंट डू एक्सरसाइज, शी डोंट वांट टू डू एक्सरसाइज। तो एक प्रॉब्लम होती है उससे, स्पाइन की प्रॉब्लम। अगर वो काफ़ी टाइम तक नहीं करती, 1-1 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करती, तो शी इज़ हैविंग सम स्पाइन में पेन एंड ऑल दीज थिंग, शी सफर्स। सो दिस इज़ होम एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि डाइट बिल्कुल हेल्प करती है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज भी बॉडी को चाहिए होती है। तो बॉडी मूवमेंट आपको करनी, दिन भर आप सिटिंग पोजीशन में है, स्टूडेंट है, एंड आप एक पोजीशन में बैठे रहेंगे, आप वेट लॉस तो कर पाएंगे डाइट से, लेकिन आप बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करें एंड पीरियड सब नॉर्मल रहे, उसके लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। तो आई ऑलवेज मेंशन कि आप डाइट फॉलो करिए एंड साथ में एक्सरसाइज फॉर 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट एवरी डे। So right now she is maintaining very good body weight, and she is not taking any sugars, वो नो शुगर पे है, एंड समटाइम्स शी एंजॉयज इट, कभी बाहर जाते हैं एंड तो कभी कभी खाती है, बट उसको अभी पता है, शी इज एजुकेटेड कि शुगर इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो शी डोंट आस्क टू टेक कि खा लूँ क्या, ऐसा कुछ। तो अब इजीली वेट लॉस करना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है वेट लॉस करना, बट आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। That is not our part to सिखाने का पेशेंट को एज अ डाइटिशियन, बट यू शुड recommend this for patient's health. So it is 8. Any more questions?